डायरेक्ट फेस में कैमरा है नीचे ना मैं this private program, and I'm sure you must have seen other programs also organized by Speak Mondays. This is today I will be performing ODC dance, and not only I will perform but I will speak about our Indian classical dance form and about the music and what is the difference between the one classical dance form to another dance form. And it's such a lovely thing to see all of you are sitting here so quietly, eager to see. And I will perform, of course, in the same time I will explain to you about the things which I will be performing so that you can understand, you can follow it. First of all, I must thank the director madam and the principal and all the staff who have invited me and giving you the opportunity to witness this program, Speak Mondays program. So today I will start with the Odissi dance. That is my style, of course. But like I said, I will speak about other dance forms also. So in your school, I think there is a dance teacher also, and you must be learning dance. Some of you, how many of you are learning dance? Just raise your hand, please. Very nice, quite a number of then. So I will tell you about the classical dance you are learning, or classical form you are learning, Kathak, Natak. They are still struggling with the microphone. There are 8 types of classical dances in India. आज मैं कौन सी डांस का देखने जाऊंगी? ओडिसी. Can you tell me which state it belongs to? Very nice. So there are another 7 classical dance forms also in India. Can you name them? एक दो नाम बता सकते हो आप? Very nice. It seems all of you know. Okay, I will tell you if other children they don't know about it. Odissi is from Odisha. Then another is Bharatanatyam. Have you heard of Bharatanatyam? Yes. Bharatanatyam is from which state? Tamil Nadu. Then Kuchipudi. Kuchipudi is from which state? Andhra Pradesh. Very intelligent children, I must say. Then Kathak is from? Kathak is from the North India. We have got Kathak from Uttar Pradesh, that we call it Lucknow Gharana, and we have Kathak from Madhya Pradesh, we call it Gwalior Gharana. Then we have Kathak from Rajasthan. That means Kathak derived from 3 states: Rajasthan, Andhra Pradesh, and Uttar Pradesh. So it belongs to North India. Then Kathak Odia, then Manipuri. Manipuri is from Manipur. Have you seen Manipuri dance? Next time I will send Manipuri dance to your school. उसके बाद केरला has got 2 classical dance forms. नाम बताइए? कथकली नाम सुना होगा? कथकली and Mohiniyattam. Kethakali and Mohiniyattam. बताइए
8 forms of classical dance form, and these are the names which belongs to different states. Then ये जो classical dance form है, it is different from one classical dance to another. Not in only the costumes, but the technical point of view we see also. The जैसे चालना जो है, feet movement, then the hand gestures, then the neck movement, then eyes movement. These are all different from Odissi to Bharatanatyam to Bharatanatyam to Kathak to Manipuri. So this costume I am wearing today, this is Odissi costume. We cannot wear any other sari rather than the Odisha sari. And then about the jewelry option, these are the silver jewelry, and these are the traditional design which we have seen in the temple of Odisha, and also all the classical dancers will follow the Natya Shastra. And in the Natya Shastra you can see the pictures and description about the jewelry of each classical dancer. So this is called Megavatiya, this is called Butterfly, this is called Tiger, and this headgear is very special of Odissi dance. This Odissi dance was originated from the Puri Jagannath temple. So भगवान श्री जगन्नाथ की बलभद्र सुभद्रा जी का जो हेडगियर है, इसमें भी बड़ा सा है, पर कोई डिजाइन में हम लोग ये वाला पहनते हैं, because this dance was derived from the temple. That's why we have taken this headgear also, and other sitting posters also we have taken, that are listened to temple. Then have you heard of the temple Konark? If you happen, then please go through the internet, you can find the names and why it is famous. It is a sun temple, it is famous worldwide, not because it is Surya Putaki Magapati, उसके लिए नहीं, but for its architecture. There are beautiful stone statues with beautiful posters that we have taken to our Odissi also. Then we compose, when we choreograph the dance form, we take those posters also and mix together and then. I will start today from Mangalacharan. Mangalacharan is a prayer dance, like you come to the school, पहले आप क्या करते हो? prayer होते हैं आपके स्कूल में? इसी प्रकार में जैसे भी हम शुरुआत में डांस प्रोग्राम करते हैं, उस स्टेज में शुरुआत में हम मंगलाचरण करते हैं. मंगलाचरण we offer flowers to the deity, then touch the mother earth, जिसको कहते हैं भूमि प्रणाम. जिस भूमि पर हम नृत्य करेंगे, उस भूमि को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम भूमि को माता मानते हैं. भूमि प्रणाम के बाद त्रिखंडी प्रणाम. त्रिखंडी प्रणाम, ये ईश्वर को प्रणाम, ये गुरु जी को प्रणाम, और ये आप सबको प्रणाम, दर्शकों को प्रणाम. त्रिखंडी प्रणाम के बाद हम एक भगवान की स्तुति देते हैं, एक श्लोक देते हैं, फिर भगवान को स्मरण करते हैं, उसके बाद सभा मिलते हैं. ये है मंगलाचरण. आज जो मैं मंगलाचरण करूँगी, ये भगवान शिव जी की स्तुति की आधारित है. गंगा तरंग कमनीय जटा करा. देखिए मंगलाचरण.
You
मंगलाचरण उसका नाम है मंगलाचरण। इसमें भगवान पुष्पांजलि देते हैं। पुष्पांजलि के बाद भूमि प्रणाम, त्रिखंडी प्रणाम, शस्त्र प्रणाम, गुरु प्रणाम और आप सबको प्रणाम करके मैं भगवान से सिद्धि के ऊपर आधारित श्लोक है भगवान को स्मरण की। उसके बाद सावधान मंगलाचरण के बाद मैं आपको बताऊंगी कि खाली ओडिसी को ये भरतनाट्यम का ये कथक का ये और कोई क्लासिकल डांस फॉर्म है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डांस आइटम लाइक मंगलाचरण और several items, but we do Mangalacharana first, then we do the pure dance, whether it is Odissi, whether it is Batu, Moksha, Sthai, Kapala. Then we come to the Abhinay part. What is Abhinay? Then I can explain to you later. First, I want to tell you about the pure dance. Pure dance is a hello. Pure dance also that we call Prangali and Batu, Sai or Moksha. What is pure dance? And what is the difference between pure dance and Abhinay, that is expressional dance? ये मेरे को थोड़ा सा आपको बताना जरूरी मैं समझती हूँ और आप प्लीज उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। I know all lectures, all speeches are very boring, but as I promised you, I will not give any speech, any this thing, but I will explain to you about the items, about the dance which I am going to perform. It is very interesting. आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए so that you have the knowledge of Odissi dance. You know, like general knowledge, common sense about the various dance. I was talking about the pure dance in Odissi. In pure dance, we take this rhythm that is called Avach, and the music also will be there, and the instrumental music also will be there. तो इसका rhythm के साथ साथ और गाने के साथ साथ whole body dances. We not only use the footwork, we do the hand movement, the eyes movement, leg movement, the whole body dances with the rhythm and the music. ये जो बजा रहे हैं इसका नाम आप जानते हो? ढोलक आपने देखा होगा कि शादी ब्याह में ढोलक बजा के संगीत करते हैं लेडीज, वो सारा वन कैटेगरी होती है, वन ग्रुप, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन ईच इंस्ट्रूमेंट। तो ये रीडिंग इससे रीडिंग होता है, रीडिंग देते हैं, उसके साथ साथ हम डांस करते हैं। देन द मंजीरा, मंजीरा के साथ ये है मंजीरा। मंजीरा तो देखा होगा आपने, मंदिर में मंजीरा बजाकर भजन कीर्तन करते हैं, भगवान भी करते हैं। तो दिस इज मंजीरा। एंड ये तो बजा रहे हो क्या है? बावली। ये सबको जानकारी है बावली। सितार देखा है आपने? सितार बड़ा सा। बीना देखा है? माँ सरस्वती के हाथ में जो बीना बजाती है। ये सारा अलग अलग है, आपके स्कूल के साथ म्यूजिक क्लास में होगा, देख लेना। तो ये इसमें हम लोग गाना होता है, जिसमें संगीत के साथ साथ ये इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक फॉलो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम डांस करते हैं, ताल को लेकर डांस करते हैं। स्पेशली ओडिसी में दो पोस्टर जो है इट इज वेरी स्पेशल एंड वेरी यूनिक पोस्टर दैट इज कॉल्ड चौक एंड त्रिभंगी। अगर स्टेडियम इज origin of Odissi dance. कहाँ पर बनती हुआ था यह? उत्पत्ति कहाँ से हुई थी ओडिसी डांस की? जगन्नाथपुरी जगह। वेरी वेरी जगन्नाथ टेम्पल। छोटे छोटे लड़कियाँ जिनको हम कहते हैं महारी। क्या कहते हैं उनका नाम? महारी। महारी लाइक देवदासी, बट इन उड़ीसा वी कॉल देम महारी।
ये celebration होता है and this Mahari they live at the temple and perform dance and music during the daily rituals. So then apart from Mahari we have a small boys like you which we call Godi Buo. So they dress one boy is dressed as Radha, another boy is dressed as Krishna, and they also used to perform inside the temple as well as the outside of the temple. But Mahari, they were very sacred, they were not supposed to perform outside the temple. But धीरे-धीरे ये डांस जो है किसी बाहर आया ओपन में और हम स्टेज पे करने लगे. And in this, so we have taken this job position from the sitting postures of Bhagwan Jagannath, Balabhadra, Subhadra. उनके sitting posture इसी तरह है. So we have taken these postures in the Odissi dance. आप ऐसे ही रहेगा and आप bending postures. Then Tripangi. Tripangi is three bends of the body. One bend is here, second bend is here, third bend is here. This is called Tripangi. तो इसी जॉब पर Tripangi को हम पूरे डांस करते हैं with the Purva and आज मैं आपको बटू परफॉर्म करूँगी. It is a pure dance and we are taking many beautiful postures like Darpani, Madhava, Manjira. ये सारा postures है तो तभी दुनिया है. ये पुराना और भुवनेश्वर पुरी में जितने मंदिर है उनमें में आपको देखने के लिए मिलेगा और वहीं से हमने ये पोस्टर डांस किए हैं. आप देखेंगे ताल के साथ साथ जैसे हम फुटबॉल भी करते हैं और सारे डांस देखिए बटू.
इसमें आपने देखा होगा ताल के साथ साथ म्यूजिक भी था, बट म्यूजिक जो था वो उसी में जो वर्ड्स था इट डजंट हैव ए मीनिंग, खाली ताल का था शाम था, doesn't carry any meaning. There is no meaning. We are not able to do the अभिनय. तो इसी में खाली फुटबॉल था and gestures and beautiful posters like दर्पणी, मर्दला, मंजीरा, आलस्य, ये सारे posters इसमें था. अभी मैं आपको एक अभिनय परफॉर्म करूँगी. अभिनय का वो है कि जो अभिनय के लिए जो गाना देंगे हम. आप थोड़ा शांत होकर बैठ जाइए प्लीज. नो मूवमेंट, no talking, no whispering. If you are getting bored, I will stop it. Should I? बंद कर दे डांस? आए बंद कर दे या नहीं डांस करूँगी परफॉर्म. तो आप थोड़ा सा चुपचाप होकर बैठिए, शांत होकर बैठिए. देखिए आपके लिए मैं बहुत दूर से आई हूँ परफॉर्म करने के लिए. अभी मैं जो अभिनय करूँगी वो बहुत ही सुंदर है. मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको कि वो अभिनय क्या होता है, तो उसके बाद मैं वो परफॉर्म करूँगी. अभिनय में जो हम गाना देंगे उसमें जो हर एक जो शब्द है, हर एक वर्ड्स है, उसका मीनिंग होगा. उसके साथ साथ हम हस्तमुद्रा और अभिनय के द्वारा परफॉर्म करेंगे. हस्तमुद्रा हमारे दो प्रकार के हैं. एक हाथ में जो हस्तमुद्रा है इसको असंयुक्त हस्तमुद्रा कहते हैं. दोनों हाथ जोड़ के जो मुद्रा है उसको कहते हैं संयुक्त हस्तमुद्रा. मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दूंगी, आप बताइए कि क्या दिख रहा है आपको. आप देखिए प्लीज. क्या है? वर्ड्स. तो हमने तो बताया नहीं कि ये वर्ड्स हम दिखा रहे हैं. बट हाउ डू यू नो फ्रॉम द हैंड जेस्चर्स? हाथ के जो मुद्राएं हैं ये जो है संयुक्त हस्त की मुद्रा, इसको कहते हैं गरुड़ मुद्रा. गरुड़ मुद्रा में हमने जब दिखाया तो आपको पता चलता है कि वर्ड्स दिखाए. गरुड़ को दिखाना तो इस मुद्रा में हम दिखाते हैं. तो ये जो हस्त मुद्रा है दूसरा ये क्या लग रहा है आपको?
तो ये जो है इसको कहते हैं सप्तशील मुद्रा। सप्तशील मुद्रा के जब सांप की बात आती है तो इसी मुद्रा में हम दिखाते हैं, और सांप के फल हो गया ये मुद्रा में हम दिखाते हैं। ये क्या मुद्रा है? ये क्या मुद्रा है? फूल है, कमल की फूल। कमल की फूल में ये क्या है? मोरा है। दिस इज कमल मुद्रा, दिस इज अलपद्मा। दोनों अलपद्मा को जोड़ के हम कमल का फूल बना दिया, और ये मोरा हो गया, फूल और मोरा हो गया। ये बांसुरी, बांसुरी कौन सी भगवान के हाथ में है? कृष्ण जी के हाथ में बांसुरी है। जब आप बांसुरी की मुद्रा को दिखा दिया तो आपको पता चल गया कि हम बांसुरी के बारे में बता रहे हैं। ये है सिंह मुद्रा। इसको जैसे गाय, भैंस, हिरण जब दिखाएंगे तो इस मुद्रा में हम दिखाएंगे। दिखाओ करके जरा हाथ पकड़ करके ये मुद्रा दिखाओ, सब लोग दिखाओ का। हाँ, बहुत बढ़िया। और सांप दिखाना, सांप की पंख दिखाना, सब लोग सांप की पंख। और विमर्श देखे बोलो ना, ये सांप की पंख हो गया, वेरी नाइस। ये जो मूर्ति को हमने भी पूजा किया है वो भगवान देवी सरस्वती देवी है। सरस्वती देवी की आदि क्या है? वीणा। और ये है मृगशीर्ष मुद्रा, ये गड्ढा होगा, ये दोनों होंगे। हम ऐसे रख देंगे तो पता चलता हम सरस्वती के बारे में बता रहे। और वीणा वादन, जिस तरह वीणा वादन होता है, वीणा वादन ये सिंह मुद्रा है। ये कान बन गया, गणेश मुंह बन गया। ये कौन सा भगवान है? गणेश जी। गणेश का जी का कान हो गया, ये सुंदर हो गया, तो ये भगवान गणेश जी। ये बताइए कौन है? कौन सा भगवान? शिव जी। शिव जी का ये, और ये है शिखर मुद्रा, ये पताका मुद्रा, ये शिव जी का लिंग, शिवलिंग। शिव जी को हम इसलिए तो ऐसे तरह तरह के जो हस्त मुद्रा के द्वारा हम अभिनय करते हैं। जैसे जैसे आता है गाने के साथ हम हस्त मुद्रा और मुखाभिनय के द्वारा हम अभिनय करते हैं। मुखाभिनय क्या होता है? जैसा आज आप लोगों को मुखा बनाने का आपसे देखने के लिए आपको अच्छा लग रहा है? Are you happy? Yes, I can see your smile in your face. बहुत अच्छा से आप लोग सब खुश हो कि आज पढ़ाई से छुट्टी है और आज काम हो रहा है, तो I can see the happy mood of yours. इससे जैसे हमारा डांस के लिए काफी लोग होता है, तो आप यहाँ पर फेस पे वो हैप्पीनेस हम दिखाते हैं। जब गुस्सा होते हो कभी, आपस में लड़ाई होती है, घर में भाई बहन की लड़ाई होती है, होते हैं ना? हाँ, उस समय क्या होता है? लाल लाल आँख होंगे, गुस्सा हो जाएगा सब। हाँ, तो वो जो काम है वो है रौद्र भाव है, ठीक है ना? अच्छा, आप जब स्कूल से जाते हो घर पे, कभी बातों को जरूर बोलोगे कि हमें अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, क्योंकि हम बहुत बड़े काम करके आए हैं, पढ़ाई करके आए हैं स्कूल में, ठीक है? हम करके तो माँ अच्छे से आपके लिए बनाती रहती है कि खाना अच्छा चाहिए, तो आप कुछ बताते हो। कभी आप बीमार पड़ते हो तो आपकी माँ बहुत सेवा करती है, बड़ी बहन पापा सेवा करते हैं, तो वो जो आपको प्यार से सेवा करते हैं वो क्या होता है? वो संतान के प्रति ममता होता है, प्यार होता है। तो इसलिए ऐसे तरह तरह के जो इमोशन है हम प्यार से चलिए। अब बातें तो बहुत हो गया, अभी हम परफॉर्म करेंगे आपके लिए कृष्ण जी का। कृष्ण जी के आपने कहानी को सब सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा, तो इसमें हम भगवान कृष्ण जी जब छोटे थे आपकी तरह, तो वो भाई बलराम और अपने दोस्तों के साथ गाय चराने के जाते थे। गाय चराते चराते वो भाई बलराम और जो उनके सारे दोस्त जो है उनको बहुत चिढ़ाते थे, उनके हाथ बांध देते थे और हाथ में पट्टी लगा के उनको बहुत मतलब चिढ़ाते थे। वो कहते थे कि भाई बलराम को कहते थे कि कृष्ण तू कितना काला है? कृष्ण जी काला थे ना? काले थे कि गोरे थे? काले थे। तो वो चिढ़ाते कि देखो कृष्ण जी, तू कृष्ण थे कितना काला है, और मैं तो देख मैं
मिलर आया, वो कितना गोरे थे, तो उनके बेटा कभी नहीं हो सकता है ना। तो मेरा भाई शायद तेरे को कहीं से मोल के लिया है, यानी कि खरीद के लिया है। ये सुन के किसी जो होता है वो रोते रोते जाके माँ यशोदा के पास पहुँचते हैं। माँ यशोदा जब देखते हैं कि रोते हुए ही आ रहा है तो उनको बहुत प्यार से उनके जो पसंदीदा चीज है क्या है, उनको क्या अच्छा लगता है, उनको मौका वो देते हैं खाने के लिए। वो नहीं खाते, बोलते थे तू मुझे पहले बता कि तू मेरा वास्तव में माँ से मेरा पुत्र नहीं है। तो माँ यशोदा को वो माता के सौगंध लेके कहती है कि तू मेरा पुत्र और मैं माँ। वो सुन के वो बहुत खुश हो जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ यमुना के तट पर बॉल खेलने के लिए चले जाते हैं। बॉल खेलते खेलते बॉल कहाँ पीता है, बॉल कहाँ पीता है, पानी में, यमुना के पानी में बॉल पीता है। तो वो सबको बोलते हैं हम पानी में से बॉल निकाल लो, लेकिन कोई घर में नहीं गए। किसके नहीं करके गए, पानी में कौन था, नागार्जुन के पानी में था, पानी में किसी के डर के नहीं गए। आखिर में कृष्ण जी अपना कमर कसकर पानी में कूद पड़े और पानी में से बॉल ढूंढते ढूंढते उनके मुलाकात हुई काले के साथ। काले जब एक नजर देखा है वो सोचता है कि ये इतना छोटा सा बालक है, वो क्या मेरे साथ लड़ाई करेगा। लेकिन जब लड़ाई हुई कृष्ण जी को पकड़ के बहुत मारे, मार के उसका फन के ऊपर पैर रख के खड़े हो गए, उसको डाउन करके उसको क्रॉस कर। तब जाके काले को पता चला कि छोटा सा बालक है, साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान है, उसके पास दैविक शक्ति है। वो कहता है रठी गोपाल, रठी गोपाल, ये गोपाल मुझे रक्षा करो, मुझे क्षमा। आखिर में भगवान उसको क्षमा कर देते हैं और उनके विश्व रूप में दर्शन करते हैं। कृष्ण भगवान जो है वही जगन्नाथ है, वही विष्णु है। विष्णु चतुर्भुज है, चतुर्भुज चार हाथ में क्या है, शंख, चक्र, गदा और शंख, चक्र, गदा पद्मों के साथ उन्होंने चक्र में से दिखाते हैं। शंख, चक्र, गदा पद्मों के साथ उनका विश्व रूप में दर्शन। ये बात मैं आपको इसका परफॉर्मेंस स्टोरी पता चल गया तो हम परफॉर्म करें ना, छुट्टी दे दें आपको। आप क्या चाहते हो, जो चाहते हो वही करेंगे। डांस देखना चाहोगे कि घर जाना चाहोगे, चलिए मैं परफॉर्म करते हैं। देखिए एक सुदास की कविता के ऊपर आधारित है कृष्ण।
फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे किस्सा आता था, जैसे रुद्र भाव है, उनके साथ लड़ाई करते समय रुद्र भाव है और शांत भाव है, और माधवता की क्या कोई भाव था, प्यार से इतना मतलब खिलाने थे बहुत सुंदर से, उनके जो भाव है वो वात्सल्य भाव था, यानी भगवान संतान के प्रति उनके जो प्यार जो ममता उसको कहते हैं वात्सल्य। तो आज मैंने थोड़ा बहुत आपको दिखाया श्री मंगलाचरण और अभिनवी, और आई होप यू विल रिमेंबर दिस, उसकी origin and Odysseus का क्या कैसे बना है and all that thing. I will request the class teacher also to get the children to write a small stanza about what they understood about the Odyssey, that especially Odysseus. और इसके साथ मैं कार्यक्रम समाप्त करूंगी। उससे पहले आप लोगों को किसी को कुछ पूछना चाहिए तो आप पूछ सकते हो रिलेटेड टू डांस। कोई चीज समझ में नहीं आया और क्यूरियस टू नो अबाउट समथिंग, किसको पूछना है आप बताइए। डोंट गेट स्कैर्ड, पूछिए ना, आप बताइए। क्वेश्चन है कि आपका जब 1948 में बना, क्या उस समय भी नृत्य का इतना प्रचलन था और इतना इस स्ट्रैटेजी की सुविधा भी नहीं थी? जब ओडिसी स्टार्ट हुआ तभी हम जब सीखते थे तभी ये जैसे हमने डिफरेंट आइटम्स किया, जैसे मंगलाचरण की, बटू की और हमने की, उस तरह का था नहीं है। वो सारा मिलाकर जैसे 10 मिनट हुआ, 8 मिनट हुआ, थोड़ा सा हुआ तो हुआ, थोड़ा सा बटू करते थे, उसके बाद मतलब ये क्या हो गया। उसके बाद सारा जितने हमारे गुरु है वो बैठ के उसको डिफाइन किए और उसको थोड़ा सा अलग टाइप का उसका करके फिर थोड़ा नेचुरली विद द टाइम चेंजेस, इसके साथ मेरे को शिकारी डांस करवाया था, हंटर डांस, तो वो मैंने किया था, मेरे को याद है। वहाँ पे एक फेस्टिवल होता था, उसी समय वो किया था। उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे ये वाला ओडिसी वाला डांस सीखे फिर हम स्कूल में भी कॉलेज में भी सीखे। लेकिन अभी जो हम बच्चों को सिखाते हैं तो ये शुरू से हम स्टेपिंग से सिखाते हैं, स्टेपिंग सीखने के बाद आइटम सिखाते हैं एंड फोक डांसेस भी सिखाते हैं, क्योंकि हमारे देश में फोक डांसेस भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, तो वो भी सिखाते हैं। सुप्रभात मैम, मेरा नाम अभिनंदन शुक्ला है। मैं कक्षा 5वीं कीवी से
ये वाला डांस ओडिसी था मेरा बचपन से। इसलिए मैं भी चाहती हूँ पढ़ाई के साथ साथ आपके कुछ हॉबी होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। स्पोर्ट्स हो, पेंटिंग हो, डांस हो, म्यूजिक हो, जो भी हो, कुछ करना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। Good morning, ma'am. Myself Ananya Prashad from 6A. Ma'am, my question is that why you have chosen this dance only? Maybe I'm born and brought up in Odisha, and coming to my childhood, I see only Odissi because in Odisha there is no other styles in those days. So I was interested naturally to learn Odissi, and I kept on learning Odissi. With that, I like all other classical dance, but I started with Odissi. Thank you. Thank you, ma'am. बड़ा साधन माना जाता है, पर आजकल के युग में इसका ये एक बड़ा केंद्र है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Please repeat your question. I could not get it properly. मां संगीत को आमोद प्रमोद का एक बड़ा साधन माना जाता है, परंतु आजकल के युग में यह एक बड़ा केंद्र है। इसके विषय में आपकी क्या राय है? That's a very valid question. In the olden days, people would be thinking कि नहीं हमको ये लाइन में हम जाएंगे तो it won't be our main career. It is, this especially the boys were also not learning those days because they will not take up any job they could learn this. But आजकल ये जो आइडिया जो है जो माइंडसेट है now it has changed. You can take it as a career also dance, and it will fulfill your passion, it will fulfill your interest, as well as you can teach also. You have the diploma, you have the certificate, taking exams, and you can take up a job as a teacher, or like I have not taken up a job as a teacher or any job in the schools or anything, but performing also can be also professionally, can be do professionally. You can earn money also. You are interested to earn money. You can take up that. Ma'am, I have the last question actually. मेरा नाम सुदर्शी मिश्रा है। मैं अंतिम प्रश्न पूरे विद्यालय की तरफ से पूछना चाहती हूँ। उससे पहले आपको यहाँ पे आने का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप अपना अनुभव समय हमने दिया। आपको हमारे विद्यालय आकर कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा आपने मुझसे बात की। आई एम इम्प्रेस्ड आपके सारे बच्चे इतने इंटरेस्टेड है देखने के लिए और सुनने के लिए and asking questions also. That is main thing also. You want to know, you are curious about these things, to know about this. Because when I go abroad also, in the public performances also, people are so much curious to know every details about the Odissi dance. Not only about the technical, but the history and about the things also. So I always feel very nice when I see in the school and colleges, young children are interested, and we must be feeling you should feel grateful that your director and principal madam, they are giving you a chance to witness this school, and you should also grateful to speak my way, like speak my coordinator हमें congratulate हैं और ये सब सारा arrangement कर रहे हैं कि आप लोगों को देखने के लिए सुविधा दी है. But one request I have seen, and it is very
तो इससे मेरी बहुत ही अच्छी बात है एंड आई फील वेरी नाइस टू सी ऑल द चिल्ड्रन एंड quite a number of children they are sitting here quietly and witness the program. बहुत बहुत आप सब लोग